Hello friends, how are you? You are welcome back to my channel La Education. And in the previous video, in the sociology series, we discussed about the emergence of sociology in the 19th century Europe. So we discussed about the factors which were responsible for the emergence of sociology as a separate or a distinct branch of human sciences. So that was first topic in the syllabus of UPSC Civil Service Exam Sociology Optional Paper 1. In this video, we are going to discuss another important concept, sociology and common sense, like how sociology is different from common sense and how common sense can be used in the sociological inquiry. So friends, I am Satyanarayan. I am a 2019 batch IPS officer, and in UPSC CSE 2018 I scored 298 in sociology optional. And let's start the discussion of sociology and common sense. So सबसे पहले let's understand that sociology is the systematic study of society, social structures, social action. So because the sociologist or the person who is making a sociological inquiry or a person who is a sociologist, he will have some kind of understanding of the social institutions and social behavior, because we all are part of the society. So because the person who is conducting a sociological inquiry or like attempting to make some sociological knowledge, he already have some understanding of the society. So there is very high chances that he can equate his sociological knowledge with common sense knowledge, because we all have some kind of common sense which we acquire from our day-to-day routine affairs. So because sociology is not same to the common sense, there are various differences. So we will understand what are those differences, क्या क्या differences हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन सेंस ये है कि जब अर्बनाइजेशन होता है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन जाती है, यानी कि देयर इज़ ए राइज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़. बट इन द केस ऑफ इंडियन सोसाइटी, sociologist A.M. Shah, he conducted a study in Gujarat and he concluded that जो हमारा कॉमन सेंस जो अंडरस्टैंडिंग है कि विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो आपकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज़ नॉट ट्रू, और दिस इज़ नॉट ट्रू कम्प्लीटली. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड एन कॉमन सेंस नॉलेज. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट जो हमारा कॉमन सेंस नॉलेज होता है, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आवर डे टू डे अंडरस्टैंडिंग या रूटीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सोसाइटी. सो इट इज़ like naturalistic or individualistic explanation. So common sense explanations are naturalistic in nature because it is the understanding of one person from his own perspective. So it may be wrong, it may be right, it may be partially correct, it may be partially right. Whereas sociology has a body of concepts, methods and data, no matter how loosely they are coordinated. यानी कि sociology जो है उसमें there is a body of concepts, there are separate concepts, there are methods and there are data. So friends, these are like sociological terms. You have to use these terms in your answers to get good marks or to fetch like high marks. You have to write these kind of statements like sociology has a body of concepts, methods and data, no matter how loosely coordinated. You have to write these in your answers. And this common sense knowledge cannot be substituted as sociological knowledge, because common sense knowledge जो होता है that is unreflective, that is not being questioned. अगर हमें कोई चीज़ लगती है तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है. सो दैट इज़ वाई सोशियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस नॉलेज. जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज होती है दैट इज़ जनरल इन नेचर, ऑल्दो इट इज़ लाइक वी कैन से दैट इट इज़ यूनिवर्सल, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूनिवर्सल एज द नेचुरल साइंसेज में जितनी चीज़ें होती है, जो कॉन्सेप्ट्स नेचुरल साइंसेज लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में होते हैं उतनी यूनिवर्सल नहीं होती सोशियोलॉजिकल थ्योरीज. लेकिन फिर भी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो होती हैं दे आर लाइक जनरल एंड दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, वेयर एज कॉमन सेंस नॉलेज होता है दैट इज़ पर्टिकुलर एंड लोकलाइज्ड. फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जो कोई भी फिनोमिना है, मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैमिली सिस्टम पे जो इफेक्ट है, तो अगर उसको एक सोशियोलॉजिस्ट पढ़ेगा तो भी रिजल्ट्स जो हैं वो वहीं आने चाहिए अगर उसको कोई दूसरा सोशियोलॉजिस्ट उन्हीं कंडीशंस में उसी डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है. सो दैट इज़ द मीनिंग दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज़ जनरल. यानी कि अगर एक सोशियोलॉजिस्ट किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो ही शुड रीच टू द सेम कंक्लूजन विच सम अदर सोशियोलॉजिस्ट इज़ मेकिंग.
So these are the basic differences. This is the content which is given in the NCERT textbook, so you should write this. Now let's understand what is the use of common sense in the role of sociology or sociological inquiry. So before understanding this, that what is the role of common sense in sociology, we have to understand some approaches to sociology, because sociology is a vast subject और उसमें जो है वो जितने sociologists हैं उन्होंने सोसाइटी को एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखा है. देयर हैज़ बीन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच द सोसाइटी इज़ बीइंग स्टडीड, एंड डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द रोल ऑफ कॉमन सेंस इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो ब्रीफली हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है और नॉन पॉजिटिविज्म में इंटरप्रेटिविज्म और फिनोमिनोलॉजी क्या है, बिकॉज इसी के आधार पर जो है वो यूज़ ऑफ कॉमन सेंस डिपेंड करता है इन सोशियोलॉजी. सो positivism is an approach in the sociology which says that the sociological inquiry should be conducted based on the data and empirical evidences. यानी कि जो हम नेचुरल साइंसेस में जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी नेचुरल फिनोमेना को, मान लीजिए ग्रेविटी है तो उसके लिए जो अगर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं या फिर जिस मेथड से हम उसको पढ़ रहे हैं, सो दैट नॉलेज इज़ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. सो द पॉजिटिविस्ट थॉट ऑफ सोशियोलॉजी, दे से दैट द स्टडी शुड बी कंडक्टेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड नो वैल्यू शुड बी अटैच्ड टू द सोशियोलॉजिकल नॉलेज. सो दैट इज़ बेसिकली पॉजिटिविज्म. वेयर एज इन द नॉन पॉजिटिविज्म देर आर टू मेन ब्रांचेज. वन इज़ इंटरप्रेटिविज्म एंड अनदर वन इज़ द फिनोमिनोलॉजी. सो इंटरप्रेटिविज्म बेसिकली जो आपके मैक्स वेबर जो हैं, आप जो ऊपर वाली फ़ोटो देख रहे हैं, ही इज़ मैक्स वेबर, उनका ये मानना था कि सोशियोलॉजी जो है दैट शुड बी स्टडिंग द सोशल एक्शन. ही डिफाइंड द टर्म सोशल एक्शन. उन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन होता है वो सोशल एक्शन तब होता है जब उसके पीछे एक मीनिंग अटैच्ड होता है. यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कुछ कर रहा है, देयर इज़ ए एक्शन and there is a meaning attached behind that action, like there is a deliberate action, so that action will be known as social action, and sociology should attempt to understand those social actions basically. So interpretivism का ये मानना है कि जो social reality है that is subjective, जैसा कि पॉजिटिविस्ट कहते थे कि सोशल रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है. मैक्स वेबर का ये मानना था कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंड एम ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी टू एक्सप्लेन द मीनिंग अटैच टू अ सोशल एक्शन. एंड फिनोमिनोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये मानना है कि जो सोशल रियलिटी है दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल. यानी कि एक इंडिविजुअल की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है दैट इज़ लाइक सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन, एंड द रोल ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी टू अंडरस्टैंड दोज ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस. यानी कि ह्यूमन जो किसी भी रियलिटी को अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करता है, सोशियोलॉजी का काम होना चाहिए उसको पढ़ने का. सो जो फिनोमिनोलॉजी जो है उसमें बेसिक जो थॉट है उसका एल्फ्रेड शूट्स का जो है, द सेकंड फोटो इन दिस स्लाइड इज़ एल्फ्रेड शूट्स, एंड एल्फ्रेड शूट्स की जो स्टडी थी उसी से जो है वो फिनोमिनोलॉजी का सोशियोलॉजी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ था. तो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो पॉजिटिविस्ट जो थे, जो अर्ली थॉट ऑफ स्कूल है, they were convinced that common sense was not enough to reach any understanding of the society, and they have to design or they have to fashion new tools of inquiry and analysis to attain their objective knowledge. So for example, इमाइल डर्कहाइम जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सोशल फैक्ट का. उन्होंने कहा कि जो सोशल रियलिटी है उसको सोशल फैक्ट्स के तौर पर देखा जाना चाहिए, और जो सोशल फैक्ट्स जो होते हैं दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर. यानी कि अगर आप उनको इंटरप्रेट करेंगे तो यू शुड नॉट अटैच एनी वैल्यू टू दैट. सो दे कंसिडर्ड कि जो कॉमन सेंस नॉलेज जो होता है दैट इज़ बेसिकली एन इम्पेडिमेंट टू द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स. यानी कि आपके सामने जो भी फैक्ट्स हैं, अगर आप कॉमन सेंस नॉलेज से देखेंगे तो कॉमन सेंस नॉलेज विल लीड यू टू नो वेयर. यानी कि आप जो है वो किसी भी सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो दैट इज़ बेसिकली द थॉट ऑफ द पॉजिटिविस्ट स्कूल, एंड दे कम्प्लीटली डिस्काउंटेड द रोल ऑफ कॉमन सेंस इन एनी सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी. जो पॉजिटिविस्ट थे, फॉर एग्जांपल ऑगस्ट कॉम्ट हैं, इमाइल डर्कहाइम हैं, ये अर्लीस्ट जो पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स हैं, इनका ऐसा मानना था कि कॉमन सेंस का जो है वो कतई कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और सोशियोलॉजिस्ट्स को जो है वो सारे फैक्ट्स और एम्पिरिकल डेटा के आधार पर ही जो है वो अपनी स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए. बट जैसे जैसे सोशियोलॉजी में और फर्दर डेवलपमेंट्स हुए, मैक्स वेबर के काम आए, और उसके बाद में जो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट जो थे
उन्होंने जब अपनी थियरीज़ देना शुरू किया तो उन्होंने जो है वो कॉमन सेंस को सोशल इंक्वायरी में थोड़ी जगह देनी शुरू करी। फॉर एग्जांपल जो मैक्स वेबर और डिल्थे जो हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट के नाम हैं, ये इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने और उसके बाद में जो एक नई ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी आई दैट वाज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। उसमें बेसिकली जी.एच. मीड जो एक थिंकर थे, उन्होंने आई, मी और सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके अलावा जी. कूले जो हैं, इन्होंने कहा कि नई कॉमन सेंस का इस्तेमाल सोशियोलॉजी में होना चाहिए। और उसके बाद में जो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच जो थी, जो अल्फ्रेड शूट्स ने जो डिज़ाइन की थी, और उसके अलावा इथनो मैथोडोलॉजिकल अप्रोच भी एक होती है सोशियोलॉजी में, उसके जो थिंकर हैं उनका नाम है हेरोल्ड गारफिंकल। तो इन लोगों ने भी कहा कि जो कॉमन सेंस नॉलेज हैं दैट इज़ सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो इनके हिसाब से हमें पढ़ना ही कॉमन सेंस नॉलेज को है बेसिकली, और कॉमन सेंस नॉलेज का इंटरप्रिटेशन ही जो है वो सोशियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स। तो देर आर डिफरेंट थॉट्स जो कहते हैं, एक तरफ पॉजिटिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी में जो है वो कॉमन सेंस का कोई रोल नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो आपके इंटरप्रेटिविज़म हैं और आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है या फिर आपके फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं, ये सोशल थिंकर्स कहते हैं कि द रोल ऑफ कॉमन सेंस इज़ सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी। बट अगर आप सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ जो हैं वो नुकसान भी हैं, उसके कुछ जो हैं वो पिटफॉल भी हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारी एवरीडे की जो कॉमन सेंस जो है दैट विल ईजिली कन्वर्ज विद द सोशियोलॉजिकल फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल टालकट पार्सन आप जानते हैं, एक फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टडी की है। तो उन्होंने जो फैमिली का जो मॉडल दिया, उन्होंने फैमिली के मॉडल में जो है ये कहा कि मैन जो होते हैं दे प्ले द इंस्ट्रूमेंटल रोल, यानी कि अर्निंग का रोल प्ले करते हैं, वेयर एज वीमेन प्लेज द एक्सप्रेसिव रोल्स। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ टालकट पार्सन्स। एंड विमेन जो हैं वो उनका काम है कि उनके हस्बैंड जब शाम को घर पे लौटते हैं तो उनको कंफर्ट करना, उनकी जो डे टू डे की जो वर्किंग की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको रिलीज़ करना। तो इस वजह से जो है वो फैमिली अच्छे से फंक्शन करती है। दिस वाज द थ्योरी ऑफ फैमिली या फंक्शनल थ्योरी ऑफ फैमिली गिवन बाय टालकट पार्सन्स। बट जो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट जो हैं या जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, बस ये जो है वो पैट्रियार्कल कॉमन सेंस है। यानी कि जो टालकट पार्सन का जो पैट्रियार्कल कॉमन सेंस था उन्होंने उनको सोशल थ्योरी का नाम दे दिया या सोशियोलॉजिकल नॉलेज का नाम दे दिया। तो अगर आप कॉमन सेंस से सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, सोशल एक्शन या सोशल स्ट्रक्चर की, तो आप जो है वो सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस ही बना के रख देंगे और जो आपकी जो अपनी वैल्यूज़ जो हैं या जो आप जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप सोशियोलॉजिकल नॉलेज को बना देंगे, रादर देन गिविंग सम क्रेडेंस ऑफ डेटा एंड एविडेंसेस। यानी कि आप बिना एविडेंसेस के, बिना डेटा के, आप अपने मन की जो बात है उसी को सोशियोलॉजिकल नॉलेज का नाम दे देंगे, दैट इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ द बेसिक पिटफॉल of use of common sense in sociological inquiry that you have to write in the exam. Now finally ये जो डिबेट है कि सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस का कितना रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इस वाली डिबेट पे जो है वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है आंद्रे बेते, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, वेरी फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने जो है वो एक आर्टिकल लिखा, एक ऐसे लिखा इस पर, और उन्होंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया कि सोशियोलॉजी में जो है वो कॉमन सेंस का कितना रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आंद्रे बेते ने इस वाले डिबेट को जो है वो लगभग ख़त्म किया। उनका ये मानना था कि अगर आप दोनों तरफ एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। यानी कि आप अगर कॉमन सेंस को कम्प्लीटली छोड़ देंगे तब भी आपकी जो सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी है वो नहीं हो पाएगी, और अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस को ही देखेंगे तब भी जो आपकी जो सोशल जो नॉलेज होगी दैट विल बी लाइक वो गलत होगी। अगर सोशियोलॉजी को सही में अगर अच्छी एक स्ट्रीम की तौर पर डेवलप करना है तो उनको जो है वो इसका एक मिक्सचर लेना पड़ेगा। एंड ही सेड दैट नथिंग वुड बी गेन्ड बाय अबेंडनिंग ईदर कॉमन सेंस और कल्टिवेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। यानी कि जब हम नेचुरल साइंसेज के जो मेथड्स हैं उनको सोशियोलॉजिकल स्टडी में यूज़ करने की बात करते हैं तो बेसिकली हम टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी डज नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स डिलिमिटेड बाय स्पेस एंड टाइम। यानी कि जो फैक्ट्स जो होते हैं उनके पीछे उनका कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए और तभी जो है वो हम सही सोशियोलॉजिकल नॉलेज पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, एंड जो सोशियोलॉजिस्ट जो होता है उसको उन कनेक्शंस को भी देखना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट को भी देखना चाहिए। सो फाइनली ही कंक्लूडेड दैट सोशियोलॉजी हैज़ टू स्टीयर एंड अनईजी कोर्स बिटवीन टू इक्वली अनफ्रूटफुल ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि दोनों ही ऑल्टरनेटिव जो हैं वो अनफ्रूटफुल है,
you cannot submerge yourself in the common sense और ऑफ द स्कॉलर्स एनवायरनमेंट. जो पढ़ रहा है वो अपने कॉमन सेंस में भी नहीं डूब सकता. एंड नीदर ही कैन परस्यू द टेक्निकल वर्चुओसिटी एट टाइम्स अनकनेक्टेड विद द सब्सटेंस ऑफ सोशल इंक्वायरी एज एन एंड इन सेल्फ. यानी कि जो आपका जो पॉजिटिविस्ट जो कह रहे थे कि कॉमन सेंस का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द केस. तो बेसिकली आप कंक्लूजन में जो है वो आंध्रे बेते को आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा अगर यूपीएससी सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे एक सवाल पूछती है. एंड जनरली यूपीएससी आस्क 10 मार्क क्वेश्चन और लाइक जो आपका एक शॉर्ट नोट लिखने का जो आता है उसमें नॉर्मली ऑलमोस्ट हर साल या हर दूसरे साल जो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग पेशेंस लिसनिंग, एंड आई होप दैट दीज वीडियोज़ आर helpful to you in understanding sociology, and I believe that the knowledge which I gained during my preparation of sociology will be helpful to you. So thank you so much. Have a nice day.